तो मित्रों अनएकेडमी इंडियाનું લાર્જેસ્ટ ઓનલાઈન લર્નિંગ પ્લેટફોર્મ છે। તમે કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય, જેમ કે જીપીએસસી છે અથવા તો કોઈ પણ ક્લાસ 3ની તૈયારી કરતા હોય, એએસઆઈ પીએસઆઈ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ છે, બિન સચિવાલય છે, તલાટીની છે, કોઈ પણ એક્ઝામની તૈયારી કરતા હોય તો અનએકેડમી એક બેસ્ટ ઓપ્શન છે અને ટોપ ફેકલ્ટી સાથે તમને ભણવાનો મોકો પણ મળી રહ્યો છે। અને બીજું કે મિત્રો પ્લાન્સ વિશે વાત કરું કે અધર જે પણ એપ્લિકેશન છે એની કમ્પેરિઝનમાં અનએકેડમીએ તમને અફોર્ડેબલ પ્રાઇસ આપે છે, બરાબર। અત્યારની જે પ્રાઇસ ચાલી રહી છે તમે જોઈ શકો છો, તમે 1 મંથનું સબસ્ક્રિપ્શન લો છો તો તમને 10% ડિસ્કાઉન્ટ ઉપર તમને 1260 રૂપિયાનું 1 મંથનું સબસ્ક્રિપ્શન મળી રહ્યું છે, અથવા તમે 12 મંથનું પણ લઈ શકો છો। એની પ્રાઇસ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 24 મંથ એટલે કે 2 વર્ષ માટેનું પણ તમે સબસ્ક્રિપ્શન લઈ શકો છો। આ 10%નું ડિસ્કાઉન્ટ 28 ફેબ્રુઆરી સુધી જ છે। તમે જ્યાં પણ કોડ માંગે ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને આ જે 10%નું ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે। પછી આફ્ટર 1 માર્ચ પછી તમને આ પ્રાઇસ ઉપર તમને જે કોર્સ મળશે। ઓકે, તો હવે કોર્સ વિશે તમને સમજાવી દો। અત્યારે જો 24 ફેબ્રુઆરીથી સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહ્યો છે આકાંક્ષા કોર્સ, જે ATDO માટે સ્પેશિયલ છે અને ટોપ ફેકલ્ટીઝ પણ તમે જોઈ શકો છો, હરેક સબ્જેક્ટ્સની અલગ અલગ ફેકલ્ટીઝ મળી જશે, બરાબર। ત્યાર પછી નિશ્ચય કોર્સ છે, જો તમે તલાટી એક્ઝામની પ્રિપેરેશન કરતા હોય તો 24 ફેબ્રુઆરીથી આ કોર્સ સ્ટાર્ટ થઈ રહ્યો છે, નિશ્ચય બેન્ચ, બરાબર। ત્યાર પછી આગળની વાત કરું તો મિત્રો પરિવર્તન કોર્સ છે, પોલીસ કોન્સ્ટેબલ આવનારી 2021ની તૈયારી માટે ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। અને બીજું કે મિત્રો અધર એપ્લિકેશન કમ્પેરિઝનમાં અનએકેડમી બેસ્ટ ઓપ્શન રહેશે। ત્યાર પછીની આગળ વાત કરીએ તો સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી અથવા તો એન્વાયરમેન્ટ તમે અલગથી ભણવા માંગો છો તો 22 ફેબ્રુઆરીથી એની પણ બેન્ચ સ્ટાર્ટ થવા જઈ રહી છે। તો જ્યાં પણ તમને કોડ માંગે તમારે ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને તમને 10%નું ડિસ્કાઉન્ટ મેં આગળ બતાવ્યું એ પ્રમાણેનું મળી જશે। હવે અનએકેડમી પર 2 પ્રકારે તમે ફ્રીમાં પણ યુઝ કરી શકો છો અને પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન લઈને પણ યુઝ કરી શકો છો। ફ્રીમાં તમને આ બધા બેનિફિટ્સ મળે છે અને પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન લો છો તો તમને આ બધા બેનિફિટ્સ મળે છે। કમ્પ્લીટ સિલેબસ કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે છે, અનલિમિટેડ પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ હોય છે, અનલિમિટેડ PDF નોટ્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે, જે પણ પરીક્ષા લક્ષી ઇમ્પોર્ટન્ટ મટીરિયલ્સ હોય છે એ પણ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે છે। રેગ્યુલર ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે, જેથી કરીને તમને ઘરે બેઠા ઓફલાઈન ક્લાસીસનું જ અનુભવ મળી જશે, બરાબર। તમને જે પણ પ્રિપેરેશન દરમિયાન કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે છે તો ડાઉટ ક્લિયરિંગ સેશનમાં તમે પૂછી શકો છો। તો મિત્રો પ્લસ સબસ્ક્રિપ્શન જરૂરથી લેવું, જ્યાં પણ કોડ માંગે ત્યાં DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે। લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તમે કોઈ પણ કોર્સ પરચેસ કરવા માંગતા હોય તો લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે અથવા તો કોમેન્ટ પિન કરેલી છે, ત્યાંથી પરચેસ કરી શકો છો। કોડ યાદ રાખવાનો છે, DD10 કોડનો યુઝ કરવાનો છે, જેથી કરીને 10% ડિસ્કાઉન્ટ મળી જશે। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेंटल एबिलिटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीपीएससी के क्लास 1, क्लास 2 और जीपीएससी का कोई भी एग्जाम हो गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन से रिलेटेड, उसमें जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पहले ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ सीरीज़ रन की है। एक तो इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, उसके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं, और कैसे मतलब कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करना चाहिए, कैसे हर सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए, उसके बारे में भी एक सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सब GS1। जैसा कि आपको पता है कि जीपीएससी में 2 एग्ज़ाम होते हैं, GS1 एंड GS2। तो GS1 के एग्ज़ाम में जो आते हैं वो है हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी और मेंटल एबिलिटी। ये 4 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो GS1 पेपर में आते हैं, जो मॉर्निंग टाइम में होता है, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में हम लोग डिस्कस कर लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी कर लिए हैं, पॉलिटी के बारे में भी कर लिए हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेंटल एबिलिटी को कैसे प्रिपेयर करना है। इसका मैं डिटेल वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से हैं, ठीक है। तो मेंटल एबिलिटी के लिए हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बुक कौन सी फॉलो करनी चाहिए। RS अग्रवाल आप फॉलो कर सकते हैं, या फिर ल्यूसेंट की बुक फॉलो कर सकते हैं, रीजनिंग वाली, ओके। तो मेंटल एबिलिटी के लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है MCQs क्वेश्चंस की। कौन से क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि जैसे ठीक है ना, मेंटल एबिलिटी में हमको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। पहले प्रैक्टिस करने के पहले आपको थ्योरी पार्ट क्लियर होना चाहिए। थ्योरी पार्ट कौन सा, मेन जो जैसे नंबर सिस्टम है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, पर उतने नहीं आते, ठीक है। लेकिन एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन हुआ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये तो आपको करना ही करना है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इनके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस आप ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, इन दोनों के भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इनके जो मेथड के क्वेश्चंस होते हैं जिसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस और बन सकते हैं, लेकिन जो मेन मेथड है ना वो आपको पढ़ लेना है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के कितने अलग अलग तरीके के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, जैसे अगर आप RS अग्रवाल को फॉलो करते हो तो जैसे टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक है तो वहाँ पे उसमें कितने अलग अलग पैटर्न में क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके 15 से 20 पैटर्न दिए हुए हैं, और उन्हीं के बेसिस पे वैल्यू चेंज करके ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप वो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना है।
फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, ठीक है। रीजनिंग क्या होता है, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ रखा हो तो आपको आइडिया होता है कि जैसे रीजनिंग में कैसे, जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाली रीजनिंग आती है, ठीक है, और ब्लड रिलेशंस वाली रीजनिंग आती है। ब्लड रिलेशन तो आपको करके ही जाना है, उसके जो एक दो ट्रिक्स होती हैं वो आप देख लीजिएगा, वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। ब्लड रिलेशंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। फिर ज्योमेट्री में जैसे एरिया और पेरीमीटर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ट्राइंगल का, स्क्वायर का, वो सारे क्वेश्चंस आपको देख के जाने हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने ही देखने हैं, ठीक है। समझ में आया किस किस के ऊपर? पहले तो आपको इन सब के क्वेश्चंस कर लेने हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, ये सारे हो गए। फिर टाइम एंड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपका थोड़ा ही टाइम बचा है, आपने नहीं कर पाया है प्रिपेयर, और हमेशा ये जो क्वांट वाला पार्ट होता है, मेंटल एबिलिटी वाला पार्ट होता है, वो आप एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम आपको क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपकी याद रहेंगी उस टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा फिर और आप मेंटल एबिलिटी में डेटा इंटरप्रिटेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, पाई चार्ट वगैरह, वो सब आप कर लीजिए। वो उसके ऊपर भी मतलब वो सिंपल क्वेश्चंस होता है, उसके ऊपर 5-6 क्वेश्चंस आपके डन हो जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन अगर आपने डेटा इंटरप्रिटेशन वाला कर लिया तो डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चन होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन भी होते हैं। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करके हम कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आता है, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपने देखा होगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन तो मिनिमम आते ही हैं। तो ये आप कर सकते हैं। एक एरिया एंड पेरीमीटर वाले सारे एरिया आपको पता होना चाहिए, ट्राइंगुलर वगैरह, ये सारे, इनके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। कोन का सरफेस एरिया क्या होता है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बचपन में हम लोगों ने पढ़े होते हैं, सिर्फ जस्ट हम लोग फार्मूला अब भूल चुके हैं, मतलब इतना याद नहीं है एकदम एग्जैक्ट फार्मूला और उसकी थोड़े से ट्रिक्स या मेथड, तो आप वो एक बार रिवाइज कर लीजिए तो आपका मेंटल एबिलिटी पूरा हो जाएगा। तो GS1 में यही आपको करना है। हिस्ट्री में से तो अच्छे 20 to 30 क्वेश्चन आते हैं। एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों हिस्ट्री आपको अच्छे से करके जाने। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो हमने डिस्कस किए थे। सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट वो है मॉडर्न इंडिया, उससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है आर्ट एंड कल्चर, ये तो आपको पढ़ना ही है। नितिन सिंघानिया की बुक है, उससे फॉलो कीजिए आर्ट एंड कल्चर। उसके ऊपर जो उसमें जितना दिया हुआ है उतना सफिशिएंट है। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत के बाहर कुछ भी नहीं आया। अगर आपने लक्ष्मीकांत कर ली, अगर पॉलिटी के 30 क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर 1 में, तो आप 30 में से 25 तो आप कर ही देंगे, ठीक है। हाँ, मैं तो 25 तो मैं तब बोल रही हूँ जब आपने 1 या 2 बार रिवीजन किया। अगर आपने मल्टीपल रिवीजन कर लिया लक्ष्मीकांत का, तो 30 में से 30 क्वेश्चंस आप डन कर सकते हैं। मेंटल एबिलिटी के लिए RS अग्रवाल मैं आपको सजेस्ट करूँगी। और दूसरा मैं आपको सजेस्ट करूँगी जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेंटल एबिलिटी के, जैसे 2017 का हुआ, 18 का हुआ, 19 का हुआ, इनके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। या प्रैक्टिस पेपर ले आइए, प्रैक्टिस पेपर जो मेंटल एबिलिटी के है, CSET वगैरह, वो सॉल्व कीजिए। उससे क्या होगा, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना उतना अच्छा है मेंटल एबिलिटी के। आपके पास 3 घंटे होते हैं। पहले 2 घंटे होते थे तो लोगों का टाइम नहीं बचता था मेंटल एबिलिटी सॉल्व करने के लिए। लाइक अब आपके पास 3 घंटे हैं, ठीक है, तो आप आराम से मेंटल एबिलिटी को सॉल्व कर सकते हैं। तो यही करना है आपको। GS1 अगर आपने इतना कर लिया तो आपका GS1 क्लियर हो जाएगा। और GS1 के जो टोटल मार्क होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। उसमें से आपको 100 का टारगेट रखना ही है। 100 का टारगेट रखोगे आप तो अच्छी पोजीशन पे आ सकते हो। अच्छा पोजीशन इन द सेंस कि आपका रैंक अच्छा आ सकता है, ठीक है। ओनली कट ऑफ अगर आपको क्लियर करना है तो आप 90 या 80 तक भी सोच सकते हो, लेकिन बहुत मैटर करता है। अगर आप सेफ जोन लेके चलो 100 मार्क्स, तो एटलीस्ट एग्ज़ाम का जब कट ऑफ आता है ना तो आपको डायलेमा नहीं रहता है कि मैं मेंस की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। तो बेटर है कि आप ये चारों सब्जेक्ट कीजिए GS1 के लिए और आपका GS1 अच्छा जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग GS2 के बारे में देखेंगे। GS2 में मैं आपको अभी बता देती हूँ कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। GS2 में है इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं वो GS2 के सब्जेक्ट हैं। जैसे कि आप देख रहे हो GS2 का जो पूरा पेपर होता है वो करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा बेस्ड होता है। तो GS2 के लिए आपको करंट अफेयर्स ज़्यादा पढ़ के जाना है, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो आपका ज़्यादा स्टैटिक होता है, ठीक है। अच्छा, पेपर 1 के लिए मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगी। अगर आप पेपर 1 में ल्यूसेंट की जो रिवीजन बुक होती है, ल्यूसेंट की जो बुक होती है या ल्यूसेंट के जो MCQs होते हैं, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्टैटिक GK के क्वेश्चन आते हैं, मिसलिनियस क्वेश्चन आते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस की ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फिर हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ठीक है, नेशनल एंथम, नेशनल ये फ्लैग वगैरह, इनको कब अडॉप्ट किया गया था,
ठीक है, पहला कौन है वर्ल्ड में, कौन पहला था, ठीक है, फिर इन्वेंशन किसने क्या किया था, ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपका मिसलेनियस वाला पार्ट कभी नहीं छूटेगा। और हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट, जैसे किसने किसको क्या बोला था, महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरु किसने बोला था, ये सारी जो मिसलेनियस चीज़ें होती है ना वो आपको एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप